municipality, and at upper level there is municipal corporation. Listen again. I'm going to repeat it again. Yes, Amritpal, have you started? Now listen carefully. Urban self and rural self government. First of all, urban self government में आप बताओगे three tiers of the urban self government, which are they? At the lowest level there is nagar panchayat. Lowest level पे nagar panchayat है, and at middle level there is municipality, and at upper level there is municipal corporation. So these are the three tiers. Rural has also three tiers. At the lowest level there is village panchayat. At middle level there is block smiti, and at highest level there is Zilla Parishad. These are the three tiers of rural self-government and urban self-government I have told you. So let's start with Gram Sabha. Now what's Gram Sabha? एक मिनट आप क्लास से first of all say 40 students, then monitors. ठीक, same as यहाँ पे भी ऐसे ही है. First of all there is Gram Sabha. Now what's Gram Sabha? 3 marks, 1 mark question can be asked about Gram Sabha. तो आपने बताना है people of the village who are at the age of 18 or above. People of the village who are at the age of 18 or above are the members of Gram Sabha. People of the village who are at the age of 18 or above are the members of Gram Sabha. And they, इनका कोई टेन्योर नहीं होता. They remain member till their death. People of the village who are at the age of 18 or above are the members of Gram Sabha, and they remain members till their death. No tenure period. जैसे मैंने कल बताया था पंचायत 5 years, there is no tenure. They remain member till their death. Now what are their functions? To elect the members of village panchayat. जैसे क्लास के बच्चे मॉनिटर्स को इलेक्ट करते हैं, सेम एज हियर members of Gram Sabha elect the members of village panchayat. They elect the members of village panchayat amongst them. इनके अपने आप में से ही होते हैं वो members. आप भी तो अपनी क्लास के मॉनिटर अपनी क्लास में से सिलेक्ट करते हो ना, same as here. They elect the members of village panchayat amongst them. Next, they keep an eye on the functioning of the village panchayat. आप भी अपने मॉनिटर्स के काम पे नजर रखते हो. डिसिप्लिन मॉनिटर अपना वर्क कर रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्म मॉनिटर अपना वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड फिर अपनी क्लास टीचर को भी बताते हो अबाउट द ड्यूटीज परफॉर्म बाय द मॉनिटर्स, whether they are doing or not. Same as they keep an eye on the functioning of village panchayat. Listen again. People of the village who are at the age of 18 or above are the members of Gram Sabha. They remain member till their death. Till their death, ये members रहते हैं. Next, their main function to elect the members of village panchayat. They elect the members of village panchayat amongst them, and they keep an eye on the functioning of the village panchayat. Village panchayat के काम पे नजर भी रखते हैं ये. So this is about Gram Sabha. Now first of all, rural self government 3 tiers. I'm going to discuss about village panchayat. Village panchayat पे अगर आपको पेपर में नोट आ जाता है तो how to write? You start with this. It works at lowest level in rural self government. It works at lowest level. देखो lowest level पे है in rural self government. फिर आप heading बना दोगे elections. Elections, yesterday you have done in urban and rural self government. You have done the point elections. You can repeat same. You can write same. आप ऐसे लिखोगे elections. हेडिंग बनाओगे इलेक्शंस. अब उसमें आप लिखोगे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत. Some seats are reserved for SC and ST, and 1/3 seats are fixed for women. This is about elections. And Sarpanch is the head of village panchayat.
Members are called punches. Members are called punches. Listen again. Elections are held after every 5 years to elect the members of village panchayat. Next आप बताओगे. Some seats are reserved for SC and ST. 1/3 seats are fixed for women. Head is called sarpanch. Members are called punches. Members को कहते हैं punches. ठीक है. Next, functions. Same as you have done yesterday. Same functions you can repeat here. You have done yesterday. Functions of urban self-government and rural self-government. You can repeat same functions. Sources of income same. Sources of income भी आप same लिखोगे. So this is about village पंचायत. ठीक. Next, अगर आपको विलेज पंचायत नहीं आया, आपको पेपर में आ गया ब्लॉक समिति, फर्स्ट पॉइंट विल बी चेंज्ड. आप लिख दोगे फर्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स एट मिडल लेवल इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. इट वर्क्स एट मिडल लेवल इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट चेंज. इधर आपने कहा था इट वर्क्स एट लोएस्ट लेवल. इलेक्शंस पॉइंट सेम, सिर्फ हेड चेंज होना है. उधर आपने क्या, हेड इज कॉल्ड सरपंच, इधर आप कहोगे हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स. बस ये चेंज है, बाकी आंसर इज सेम. हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स, रेस्ट ऑफ द आंसर इज सेम. You can write same points. Now come to Zilla Parishad. Again, first point will be changed. It works at highest level in rural self-government. It works at highest level in rural self-government. Same points, same as block committee. Head is called chairperson, members are called ward members. No change. यहाँ पे head and members को same वही लिखना है आपने. Same है, no change. Now come to, I think रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 टायर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कम टू अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के अब 3 पॉइंट्स 3 टायर्स पे आ जाते हैं. फर्स्ट, अगर आपको आ जाता है नगर पंचायत, तो आप लिखोगे इट वर्क्स एट लोएस्ट लेवल इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. अब यहाँ पे रूरल नहीं आएगा, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. इलेक्शंस सेम, सेम है. Head is called chairperson, members are called ward members, same, no change. Next, सारा आंसर सेम. Municipality, only first point is changed. It works at middle level in urban self-government. Rest of the answer is same. Rest of the answer is same. Next, municipal corporation. It works at highest level in urban self-government. And elections, head को आप चेंज करोगे. यहाँ पे head is called mayor. Head is called mayor. Members are called councillors. Head को क्या कहते हैं, mayor. And members, councillors. Members are called councillors. Listen again. Head is called mayor. And members are called councillors. जलंधर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है ना, तो आपके एरिया के काउंसलर्स होंगे. पूछना अपने पेरेंट्स से. काउंसलर्स, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स. रेस्ट ऑफ द आंसर इज सेम. सबका टेन्योर 5 इयर्स है. ये लाइन आप कॉमन रखोगे, सब में टेन्योर इज 5 ईयर. आपकी मर्जी, आप लिखना है कि नहीं लिखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. अब लास्ट में आ जाओ. एक रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 टायर्स पे नजर कौन रखता है, आपने बताना है. सेक्रेटरी. सेक्रेटरी कीप्स एन आई. रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में सेक्रेटरी कीप्स एन आई ऑन द फंक्शंस ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. सेक्रेटरी जो होता है कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड इन अर्बन सेल्फ, डिप्टी कमिश्नर keeps an eye on the functioning of urban self-government.
स्टेट गवर्नमेंट, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसे सैलरी भी वहीं से आती है। डिप्टी कमिश्नर keeps an eye on the functioning of urban self government and keeps he is employee of state government. So this is about whole three tiers of rural self government and urban self government. Means एक करोगे विलेज पंचायत सारे लर्न। हेड में सिर्फ आपको ध्यान रखना, विलेज पंचायत हेड इज सरपंच, मेंबर्स आर कॉल्ड पंचेस, बाकी सब में वार्ड मेंबर्स and chairperson, and in municipal corporation head is called mayor, members are called councillors. Who keeps an eye on the functioning of rural self government? Secretary. Who keeps an eye on the functioning of urban self government? Deputy commissioner. So this is about urban self and rural self government. So this chapter is totally completed, no problem. Yesterday you have done urban self, rural self and Amendment Act of 1992 and how federalism practiced in India. You have done all, and today we have done that three tiers of urban self and rural self government. I think no problem in this topic. If you are having any problem, you can raise your hand and ask. If you are having any problem, ग्राम सभा, इसको ऐसे लेना है, क्लास फिर मॉनिटर्स। क्लास के जो बच्चे हैं वही मॉनिटर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, और क्लास के बच्चे उन पे नजर भी रखते हैं। सेम एज हियर, people of the village who are at the age of 18 or above are the members of Gram Sabha and they remain member till their death. ठीक है, फिर आपने बताना कि they elect the members of village panchayat among them, head is and they keep an eye on the functioning of village panchayat. This is about Gram Sabha. Next, village panchayat. विलेज पंचायत का आपने बताना है कि विलेज पंचायत इट वर्क्स एट लोएस्ट लेवल इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इधर आपका हेड आ जाना सरपंच, मेंबर्स आ जाने हैं पंचेस, इधर ब्लॉक समिति हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स, इधर जिला परिषद में हेड इज कॉल्ड अगेन चेयरपर्सन, मेंबर्स वार्ड मेंबर्स, नगर पंचायत में भी सेम चेयरपर्सन वार्ड मेंबर्स, चेयरपर्सन वार्ड मेंबर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, हेड इज कॉल्ड मेयर, MAYOR। जलंधर का मेयर पता है ना आपको? नहीं पता तो आज पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। हेड इज कॉल्ड मेयर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। आपके एरिया पे भी काउंसलर होंगे, पूछना अपने फ्रेंड से। मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स, क्योंकि जलंधर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फाउंड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी सिटीज में पाई जाती है, और ये स्मॉल सिटीज में, तभी हम कहते हैं मिडिल लेवल पे, ये लोएस्ट लेवल पे टाउन्स में पाई जाती है नगर पंचायत। तो अपर लेवल पे क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मिडिल लेवल पे म्युनिसिपैलिटी, लोएस्ट लेवल पे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में नगर पंचायत। सो हेड सबके आपको लर्न रखने हैं, सिर्फ दो के हेड डिफरेंट है, पंचायत सरपंच पंचेस, इधर मेयर काउंसलर COUNCILLORS काउंसलर्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर, सरपंच एंड पंचेस, बाकी सब में वार्ड मेंबर्स एंड नो। आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री लेसन नेशनलिज्म इन इंडिया। If you are having any problem, you can raise your hand and ask any, if you want to ask any question, you can ask. But I think civics में अब problem नहीं होनी चाहिए। चलो, next come to history. And our next topic is nationalism in India. Nationalism in India जो है ना टॉपिक, इसमें से मैप भी आना है। From this chapter बोर्ड में आपको 2 मार्क्स का मैप भी आना है, सिर्फ इसी चैप्टर में से मैप आता है बस। तो आज आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। आई एम गोइंग टू टेल यू द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या, अगर आपको ये नॉलेज होगी तो आपको इजी लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना, दैट स्टार्ट्स विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में एंड हुई, बिटवीन अलाइड एंड एक्सिस पावर्स। यू हैव रेड इन 9th आल्सो in chapter Russia and Germany,
अलाइड एंड एक्सिस पावर्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। अभी आज आप नहीं लिखोगे, हम कल करेंगे। इंडिया had no enmity with any country, but India participated in this war on the behalf of British, because British asked Indians that if they would help them in the war, British would introduce some changes in Indian administration. So Indians had to participate in this war on the behalf of British, because India was colony of British in those days. तो ब्रिटेन के बिहाफ पे इंडिया ने पार्ट लिया। अब इंडियंस को फोर्स किया गया, फॉर ब्रिटिश फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट, दे फोर्स इंडियन पीजेंट्स वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी। तो इस वजह से ब्रिटिश ने फोर्स रिक्रूटमेंट पहले तो फॉलो किया। एंड इन दिस वॉर मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। कहते यंगस्टर की डेथ हुई थी, घरों में हाउस होल्ड इनकम डाउन चली गई थी, क्योंकि घरों में सिर्फ बच्चे, बूढ़े और वुमेन थी, बस यंगस्टर की डेथ हुई थी इस वर्ल्ड वॉर में। तो many people lost their life, and 13 million in those days, two famine also occurred in India, and 13 million people lost their life due to famine. Food shortage was in India due to famines. Famines के कारण इंडिया में फूड शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो इस वे से जो इंडियंस थे ना, दे वर टोटली आफ्टर द वॉर ब्रिटिश turned more hostile towards Indians, because British suffered heavy loss in this war, and they wanted to do their economic recovery from India. India से recovery करना चाहते थे, because India was their colony, and British wanted to do their economic recovery from India, and they did. They introduced various taxes on Indian people. कहाँ तो reforms करने थे, उन्होंने तो उल्टा उन पे और taxes लगा दिए, and they introduced new tax, that was income tax. इनकम टैक्स भी लगाया इंडियन पे, एंड ब्रिटिश didn't remit the revenue. Indian peasants were not in a condition to pay the revenue in those days, but British never remitted revenue. कभी भी ब्रिटिश ने रेवेन्यू रिमिट नहीं किया था. They didn't remit revenue, and India was economically, politically, socially exploited by the British, and all this created the feelings of nationalism among Indians. उनको था कि अगर अपनी गवर्नमेंट होती शायद हमारी हेल्प करती, ब्रिटिश तो और हमारे लिए और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पेपर में पूछते होते हैं, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. ठीक है. अब इसके बाद आपका आ जाता है गांधी जी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा गांधी जी पे बेस्ड है, ईयर वाइज है, तो इस चैप्टर में आपको ईयर्स लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है भी ईयर वाइज, जैसे मैं करवाऊंगी, लर्न लाइक दैट. देखो सबकी वीडियो ऑफ है, प्लीज स्टूडेंट्स ओन योर वीडियो. गांधी जी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो गांधी जी वॉज नॉट इन इंडिया, गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते होते हैं, गांधी जी इंडिया कब आए, 1915, और कहाँ थे, ये भी 1 मार्क में पूछते होते हैं. गांधी बिफोर कमिंग टू इंडिया गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी, सत्याग्रह मूवमेंट. वाई गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका? Because in South Africa in those days there was racial discrimination. Blacks and Indians were treated badly by whites. Indians को वो black कहते थे, and Indians were discriminated by the South African people. So that's why Gandhi ji launched Satyagraha movement in South Africa, but he came to India in 1915. And when he came on the advice of his political guru, Gopal Krishna Gokhale, learn the name, political guru of Mahatma Gandhi, Gopal Krishna Gokhale, he took the round of whole of India. ये एक स्टोरी है, आप सुनो. 1914 मैं 1914 से कैसे आपको आगे लेके जाऊंगी, 1947 तक आपने लर्न करना है. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 15 में गांधी जी इंडिया आए, एंड किसके कहने पे, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, he took the round of whole of India and was shocked when he saw the poor condition of Indians under British, and he was also shocked when he saw the poor condition of untouchables in India. So Gandhi ji decided to launch Satyagraha movement in India also. सत्याग्रह का मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा, सत्य मीन्स सच, सत्याग्रह, ग्रह मीन्स फाइट, फाइट फॉर ट्रूथ,
सच के लिए लड़ना। ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया टू, सत्याग्रह मीन्स टू फाइट फॉर ट्रुथ। इन दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड सत्याग्रहीज, जो उनके फॉलोअर्स बने ना उनको सत्याग्रही कहा गया, इफ योर फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन यूज मोरल फोर्स नॉट फिजिकल फोर्स। आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी है ना, संजय दत्त वाली, तो उसमें वो गांधीगिरी तो फॉलो करता है, वो कुछ भी होता है वो उसको मारने की बजाय आप देखो कैसे वो उसको मोरली हैंडल करता है अपनी हर प्रॉब्लम को, उस पर्सन को कैसे वो चेंज करता है विद, आप कह सकते हो मोरल वे से, मोरल वैल्यूज के साथ कैसे वो चेंजेस लाता है दूसरों में, मारता नहीं है। ठीक है, तो सेम एज गांधी जी का ये मैसेज था, अगर आपकी जो लड़ाई है ना वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, वो कहते हैं लड़ो बट यूज मोरल फोर्स, मोरल फोर्स के साथ लड़ाई करो, ना कि फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स नहीं यूज करनी। ये मैसेज दिया था गांधी जी ने। अब ही टुक 3 सत्याग्रह राउंड्स अंडर दिस मूवमेंट। अब वो 3 राउंड्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज, अब ये ईयर वाइज है, मैंने पहले बोला 14 में इंडिया आए, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 15 में गांधी जी इंडिया आए, नौ 16 आ गया, ही वेंट। अब 16 में गांधी जी चले गए चंपारण। 16 में गांधी जी किधर गए? चंपारण। चंपारण विलेज इन बिहार। अब ये नाम आपने याद रखने हैं। इन 16 गांधी जी वेंट टू चंपारण विलेज इन बिहार। क्यों गए चंपारण? इससे ना पेपर में या तो कहते होते हैं लोकेट चंपारण, या फिर पेपर में कहते होते हैं कि इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट। आपको कहते थे लोकेट द प्लेस, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ सुनोगे लोकेट द प्लेस वेयर इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट टुक प्लेस। तो आपको तो हिंट दिया ही नहीं उन्होंने कौन सी प्लेस, आप अपने आप पहचानो। इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट की प्लेस पता है कौन सी है? चंपारण। चंपारण अब है कहाँ पे? बिहार में एक विलेज है, अभी भी है, गायब नहीं हो गया। इट इज अ विलेज इन बिहार। ठीक है, चंपारण। तो गांधी जी 16 में चंपारण गए टू हेल्प द इंडिगो प्लांट, इंडिगो प्लांटर्स को, इंडिगो पीजेंट्स जो थे ना, टू हेल्प द पीजेंट्स। हियर पीजेंट डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो पता है क्या है? एक डाई की तरह यूज होता था, ब्रिटेन जाता था इंडिगो, जैसे घरों में नील नहीं होता, मम्मा से पूछना, वो डाई के लिए उनकी मिल्स यूज करती थी ब्रिटेन की, तो वो इंडिया से जाता था। इंडिया में कोल्ड क्लाइमेट, ब्रिटेन में कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण वहां पे इंडिगो ग्रो नहीं होता था, तो ब्रिटिश इंडिया से लेके जाते थे। एंड इन बिहार पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। गांधी जी वेंट देयर टू हेल्प द पीजेंट्स एज दे डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो। तो 1916 में वो चंपारण गए। एंड इन 1917, अब आ गया 17, देखो मैंने ईयर वाइज बोला था, 1917 में वो गए खेड़ा इन गुजरात। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, वहां गए टू हेल्प द peasants, poor peasants. Here peasants were not in a condition to pay revenue to the British government. Peasants जो थे ना वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो गांधी जी वेंट देयर टू हेल्प दीज पीजेंट्स। और मैंने पहले ही आपको बता दिया, ब्रिटिश नेवर रिमिटेड रेवेन्यू, कभी भी रेवेन्यू रिमिट नहीं करते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया? दे पोस्टपोन रेवेन्यू टू द नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस साल नहीं देना, नेक्स्ट ईयर डबल देना। तो बात तो वहीं पे आ गई, इस साल मत दो, नेक्स्ट ईयर डबल देना। तो बात वहीं पे आ गई, मीन्स डिमांड पूरी नहीं हुई। खेड़ा इन गुजरात, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता होता है मैप के लिए, लोकेट द प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट टुक प्लेस। पीजेंट सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह के लिए कौन सी प्लेस है? खेड़ा। खेड़ा इन गुजरात। ठीक है, अब थर्ड राउंड, मैंने बोला था 3 राउंड लिए। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए। अहमदाबाद अगेन इन गुजरात, मीन्स उनके 2 राउंड्स गुजरात के हैं, एक बिहार का है, 2 गुजरात के हैं। तो इन 1918 ही वेंट अहमदाबाद टू हेल्प द कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प करने गए थे, बिकॉज देयर वेजेस वर मोर, सॉरी वेजेस वर लेस एंड वर्किंग आवर्स वर मोर, एंड गांधी जी वेंट टू help these workers to increase their wages and to reduce their working hours. तो ये उनके 3 सत्याग्रह राउंड थे। फर्स्ट इन चंपारण, सेकंड इन, आप बताओगे खेड़ा, एंड थर्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद वाला क्वेश्चन पेपर में कैसे आता होता है मैप में? लोकेट द प्लेस वेयर वर्कर्स मूवमेंट टुक प्लेस, वेयर
कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट टुक प्लेस, कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट टुक प्लेस, तो वो कौन सी प्लेस आप लोकेट कर दोगे? अहमदाबाद। तो ये मैप के क्वेश्चन में वैसे साइड बाय साइड आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब हम 1918 तक कर लिया, अब आ गया 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट ब्रिटिश ने पास कर दिया। विच एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इन 1919? रॉलेट एक्ट। क्यों रॉलेट कहा गया? बिकॉज इट वाज पास्ड अंडर द अंडर जस्टिस रॉलेट, जस्टिस रॉलेट के अंडर इसे पास किया, उसी के नाम पे ये नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी? दिस एक्ट गेव वास्ट पावर्स टू पुलिस, पुलिस को पावर्स ज्यादा दे दी। नाउ पुलिस कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। पुलिस का जिसको दिल करता था उस इंडियन को अरेस्ट करती थी, कितने देर के लिए? 2 years के। Indians had no right to appeal, दलील एंड हायर वकील। इंडियन ना तो अपना वकील कर सकते थे, ना दलील दे सकते थे, ना ही अपील कर सकते थे। 2 years के लिए जेल में रहना होता था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश। दिस एक्ट गेव वास्ट पावर्स टू पुलिस, पुलिस could arrest any Indian without trial for 2 years। Indians had no right to appeal, दलील एंड वकील। तो Gandhiji was against this Rowlatt Act. Rowlatt Act was also known as Black Bill। पेपर में कई बार रॉलेट एक्ट की जगह लिख देते होते हैं राइट अबाउट ब्लैक बिल्स, तो आपने इसी को रॉलेट एक्ट लिखना है, ठीक है। तो गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट एंड ही डिक्लेयर्ड हड़ताल। आपने हड़ताल वर्ड ही बोलना है, इसे स्ट्राइक नहीं लिखना। ही डिक्लेयर्ड हड़ताल इन होल ऑफ इंडिया ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल की गांधी जी ने, जैसे अभी पीजेंट्स जो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, वो डिक्लेयर करते हैं ना बंद की कॉल, तो फॉलो करते हैं सब लोग, सेम एज गांधी जी डिक्लेयर्ड हड़ताल इन होल ऑफ इंडिया ऑन 6 अप्रैल 1919। आपको ये याद रखना है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या डिक्लेयर की? हड़ताल। अब हड़ताल है, जो जो होना है आपको आपको पता ही है क्या क्या होता है। स्कूल कॉलेजेस बंद, शॉप्स, सब कुछ बंद है ना। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोसेशंस वर गोइंग ऑन। एंड फिर आप बता सकते हो पीपल पिकेटेड अप लिकर शॉप्स, लिकर शॉप्स। पिकेटेड पता क्या होता है? पिकेट, किसी की एंट्री बंद करना, किसी जगह की एंट्री बंद कर देना, बाहर धरना लगा के बैठ जाना। तो लोगों ने क्या किया लिकर शॉप्स जो थी ना, वाइन वाली शॉप्स जो होती थी, उनके बाहर धरने लगा देते होते थे, क्योंकि उससे ब्रिटिश को बहुत इनकम होती थी। पीपल पिकेटेड अप लिकर शॉप्स। तो ये सब कुछ लोगों ने किया। इन अमृतसर देयर वाज हड़ताल इन अमृतसर आल्सो। अब पूरे इंडिया में हड़ताल थी तो अमृतसर में भी थी। डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड बाय ब्रिटिश। तो वहां पे ब्रिटिश ने क्या किया? डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया। तो इंडियंस डिमांडेड टू रिलीज दीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स बट ब्रिटिश रिफ्यूज्ड एंड देयर वाज वायलेंस इन अमृतसर। अमृतसर में थोड़ी सी वायलेंस हो गई बिकॉज ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिलीज डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू। तो ब्रिटिश हैड टू कॉल जनरल डायर। ब्रिटिश को किसको बुलाना पड़ा? जनरल डायर को। अब ब्रिटिश ने जनरल डायर को इंडिया बुलाया। कब बुलाया? जनरल डायर 10 अप्रैल। अब आपको मैंने अभी बताया 6 अप्रैल को हड़ताल थी। जनरल डायर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर पहुंच गया और आते ही उसने मार्शल लॉ पास किया। ही पास्ड मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या था? पेपर में 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय मार्शल लॉ? बाय दिस लॉ इंडियंस वर नॉट अलाउड टू असेंबल। असेंबल नहीं हो सकते थे, 2 या 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। मार्शल लॉ पास किया आते ही जनरल डायर ने। और अब आ गई बैसाखी। मैंने बोला 6 अप्रैल की हड़ताल, अभी 1919 की ही हम बात कर रहे हैं। और आगे अब अभी आज मैं इतना ही कराऊंगी। 10 अप्रैल को जनरल डायर केम टू इंडिया। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 15 गांधी जी केम टू इंडिया। 16 ही वेंट चंपारण। 17 ही वेंट खेड़ा। 18 ही वेंट अहमदाबाद। 1919 अभी हम कर रहे हैं रॉलेट एक्ट, देन हड़ताल, एंड देन जनरल डायर केम टू इंडिया, एंड नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट आ जाना अब आपका। और ये हम कल करेंगे क्योंकि इतने सारे ईयर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम भी आएगी। जितना आज मैंने करवाया प्लीज रिवाइज, एंड वो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट वाला अर्बन सेल्फ भी आप रिवाइज करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।